مصر کے شہر قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کے دور حکومت میں ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی وجہ سے عیسائی بھی پورے امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے مذہبی معاملات انجام دیتے تھے۔ انہی دنوں شہر کے ایک مشہور کلیسا میں ایک پوپ رہتا تھا جو آہستہ آہستہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا۔ اس پوپ کی شہرت کی وجہ کوئی عام بات نہ تھی، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کی نبض پکڑ کر یہ بتا سکتا ہے کہ وہ پاک دامن ہے یا بد کردار، یعنی اس نے نکاح سے پہلے کسی سے تعلق قائم کیا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کی بات پر اس حد تک لوگ یقین کرنے لگے کہ مسلمان بھی اس کے پاس جانے لگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اکثر اوقات میں اس کی باتیں سچ ثابت ہوتی تھیں۔ اگر کوئی پاک دامن لڑکی لائی جاتی تو وہ فوراً کہہ دیتا کہ یہ لڑکی پاک ہے، اور واقعی وہ لڑکی پاک نکلتی۔ اگر کوئی بد کردار عورت لائی جاتی تو وہ اس کو بھی پہچان لیتا، اور لوگ حیران رہ جاتے جب لوگ اس سے پوچھتے کہ اسے یہ علم کیسے حاصل ہوا، تو وہ بس اتنا کہتا کہ یہ اس کے مذہب کا خاص علم ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس بات نے اس کی عزت اور شہرت کو مزید بڑھا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت مصر کے بڑے بڑے شہروں تک پہنچ گئی۔ دور دور سے لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر اس کے پاس آنے لگے تاکہ شادی سے پہلے ان کے کردار کی تصدیق ہو سکے۔ اس کے پاس آنے والے لوگ اس کو بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، سونے کے سکے، قیمتی تحفے اور دیگر دولت۔ یوں وہ ایک عام پوپ سے ایک بڑا تاجر بھی بن گیا۔ اس کی دولت اور اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا غرور بھی بڑھنے لگا۔ اس کا کلیسا صرف عبادت گاہ نہ رہا بلکہ لوگوں کے فیصلوں کا مرکز بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اس پر اس قدر یقین کرنے لگے کہ جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی پہلے اسے پوپ کے پاس لے جایا جاتا۔ اگر پوپ کہہ دیتا کہ لڑکی پاکیزہ ہے تو لڑکے والے شادی کے لیے تیار ہو جاتے۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی پاک نہیں ہے تو وہ لڑکی نہ صرف شادی سے محروم ہو جاتی بلکہ اس کے گھر والوں سمیت اسے گاؤں سے نکال دیا جاتا۔ لوگوں کو اس کی بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ کسی انسان کی عزت اس طرح سرعام ختم کی جا رہی ہے۔ وہ بس پوپ کی بات پر یقین رکھتے تھے۔ اسی دوران بہت سی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوئیں۔ کئی لڑکیاں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا محض پوپ کے ایک جملے کی وجہ سے بدنام ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کرتا تھا، کیونکہ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا وہ یا تو خاموش کر دیا جاتا یا غائب ہو جاتا۔ گاؤں میں خوف کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ لوگ پوپ کے سامنے بولنے سے ڈرتے تھے۔ وہ خود کو خدا کا نمائندہ سمجھنے لگا تھا، اور لوگوں نے بھی اسے ایسا ہی مان لیا تھا۔ اس کی بات کو آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح پوپ کی جھوٹی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور لوگ اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنی زندگیاں اس کے حوالے کرتے جا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پوپ کے ظلم کے نتائج گاؤں میں واضح ہونے لگے۔ بہت سی لڑکیاں جو بالکل پاک دامن تھیں صرف اس لیے بدنام ہوئی کیونکہ وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتی تھیں یا ان کے پاس پوپ کو دینے کے لیے دولت نہیں تھی۔ جب انہیں پوپ کے پاس لایا جاتا تو وہ ان کی نبض پکڑ کر بغیر کسی سچائی کے کہہ دیتا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ پھر وہ لڑکی نہ صرف اپنے ہونے والے شوہر سے محروم ہو جاتی بلکہ اس کے خاندان کو بھی گاؤں سے نکال دیا جاتا۔ ایسے خاندان بے گھر ہو جاتے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاتے۔ بہت سی لڑکیاں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ اس کے برعکس وہ لڑکیاں جو امیر خاندان سے ہوتی تھیں کہ جن کے والدین پوپ کو بھاری رقم دیتے تھے، انہیں فوراً پاکیزہ قرار دے دیا جاتا، اور بعض لڑکیاں خوف کے مارے پوپ کو اپنا جسم بھی پیش کر دیتی تھیں تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس طرح پوپ نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا
बल्कि खुलेआम गुनाह में भी मुब्तला था। मगर लोग उस हकीकत से बेखबर थे या जानबूझकर खामोश थे। गाँव के लोग इतने खौफजदा थे कि किसी को उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न होती थी। अगर कभी कोई उसके खिलाफ बात करने की कोशिश करता तो पोप के आदमी उसको खामोश करा देते या गायब कर दिया जाता। इस तरह पूरे गांव पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया था। लोग जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी खामोश रहते थे क्योंकि उन्हें भी अपनी इज्जत और जान का खौफ था। इसी दौरान कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। कोई उनसे शादी करने को तैयार न होता, कोई उन पर यकीन न करता और वो अपनी ही बरादरी में अजनबी बन जाती। उनकी माए बाप रोते लेकिन कुछ कर न पाते क्योंकि पोप का फैसला हतमी समझा जाता। गांव के लोग उसको खुदा का फैसला समझने लगे थे, हालांकि वो सिर्फ एक इंसान था जो अपनी ख्वाहिशात और लालच के दूसरों की जिंदगी तबाह कर रहा था। वक्त के साथ साथ उसका जुल्म बढ़ता गया और मासूम लोगों का सब्र टूटने लगा। कुछ लोग दिल ही दिल में उसके खिलाफ नफरत रखते थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में न थी। गांव के बाहर भी उसकी शोहरत फैल गई थी, मगर कोई उसके असल चेहरे से वाकिफ न था। उसके झूठ ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और मासूम लड़कियां उस जुल्म का सबसे बड़ा शिकार बन रही थी। उनकी जिंदगियां सिर्फ एक इंसान के झूठे दावे की वजह से खत्म हो रही थी और कोई उनका मददगार न था। उन्हीं दोनों एक बूढ़ा ईसाई शख्स जिसका दिल उन मजालिम को देखकर भर चुका था, आखिरकार हिम्मत जमा करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। उसका चेहरा गम और दर्द से भरा हुआ था। उसने सुल्तान के सामने खड़े होकर कहा कि वो एक ईसाई है और उसके गांव में एक पोप लोगों को धोखा दे रहा है। उसने सुल्तान को बताया कि अगर सुल्तान उस पोप को झूठा साबित कर दे तो पूरा ईसाई गांव इस्लाम कबूल कर लेगा और वो कलीसिया मस्जिद में तब्दील हो जाएगा। सुल्तान ने ये बात सुनकर हैरत का इजहार किया और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब उस बूढ़े शख्स ने पूरी कहानी बयान की। उसने बताया किस तरह पोप लड़कियों की नब्ज पकड़कर उनके किरदार का फैसला करता है, मगर दरअसल वो अमीर लोगों से रिश्वत लेता है और गरीब लड़कियों को बदनाम करता है। उसने बताया कि जो लड़कियां उसको अपना जिस्म पेश करती हैं या जिनके वालिदैन उसे भारी रकम देते हैं, वो उन्हें पाकीज़ा करार देता है और जो लड़कियां शरीफ और गरीब घरों से होती हैं, उन्हें बदकिरदार कहकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। उस बूढ़े शख्स ने ये भी बताया कि जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है या तो गायब कर दिया जाता है या खामोश करा दिया जाता है। इस तरह पूरे गांव में खौफ की फिजा कायम है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को शदीद गुस्सा आया, मगर वो जज्बात में आकर कोई कदम उठाने के बजाय अकल और हिकमत से काम लेना चाहते थे। सुल्तान ने उस बूढ़े शख्स की बात गौर से सुनी और वादा किया कि उस जुल्म का खात्मा जरूर करेंगे। सुल्तान जानते थे कि वो बगैर सबूत के पोप को गिरफ्तार कर लेते या कत्ल कर देते तो इसका असर उल्टा भी हो सकता था। लोग यह समझ सकते थे कि सुल्तान मजहबी आज़ादी के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाने का फैसला किया जिससे पोप का झूठ सबके सामने बेनकाब हो जाए। सुल्तान ने दरबार में अपने एक ऐसे नौजवान को बुलाया जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी। वो बिल्कुल कम उम्र और नरम चेहरे वाला था। सुल्तान ने उसका हुलिया लड़की की तरह तब्दील करवा दिया। उसे औरतों जैसे कपड़े पहनाए, उसके बाल संवारे और उसे बिल्कुल एक लड़की की तरह बना दिया। फिर सुल्तान ने खुद भी एक आम आदमी का भेष बदला
ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। सुल्तान ने उस नौजवान को अपनी बेटी के तौर पर पेश करने का फैसला किया, ताकि पोप का असल चेहरा सबके सामने आ जाए। सुल्तान ने मंसूबे को बड़ी खामोशी और एहतियात के साथ तैयार किया, किसी को इसकी खबर न होने दी, क्योंकि अगर पोप को पहले ही इस बात का इल्म हो जाता तो वो कोई और चाल चल सकता था। सुल्तान का मकसद सिर्फ पोप को सजा देना नहीं था, बल्कि उन तमाम मासूम लड़कियों की इज्जत बहाल करना था, जिनकी जिंदगियां उसके झूठ की वजह से तबाह हो चुकी थीं। सुल्तान ने अल्लाह से मदद मांगी और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आम आदमी के देश में उस नौजवान को साथ लेकर उस कलीसिया में पहुंचे जहां वो पोप रहता था। उन्होंने खुद को उस लड़के का बाप जाहिर किया और कहा कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, मगर उससे पहले उसका किरदार चेक करवाना चाहते हैं। पोप ने हस्ब मामूल उन्हें अंदर बुलाया। सुल्तान ने लड़के को अंदर भेजा और खुद बाहर इंतजार करने लगे। पोप ने जब उस नौजवान को देखा तो उसे लगा ये वाकई एक लड़की है। उसने उसकी तरफ देखा और इशारे से बात करने की कोशिश की। नौजवान ने गुस्से से उसे देखा। पोप समझ गया ये लड़की इसे अपना जिस्म नहीं देगी और न ही इसके वालिद शायद उसे रिश्वत देंगे, इसलिए उस नौजवान को बाहर जाने को कहा और सुल्तान को अंदर बुलाया। जब सुल्तान अंदर गए तो पोप ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो 1000 सोने के सिक्के दो, वरना मैं अभी इसे बदकिरदार साबित कर दूंगा और इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान को गुस्सा बढ़ गया, मगर उन्होंने अभी तक अपना असल जाहिर नहीं किया। उन्होंने पोप से कहा, इनके पास इतनी दौलत नहीं है, मगर पोप अपनी बात पर कायम रहा। उसने कहा, या तो पैसे दो या अपनी बेटी को बदनाम होता देखो। ये सुनकर सुल्तान ने फौरन अपनी तलवार निकाली और पोप की गर्दन पर रख दी। फिर उन्होंने अपना असली हुलिया जाहिर किया और कहा कि मैं मिस्र का सुल्तान हूँ। ये देखकर पोप के होश उड़ गए, वो कांपने लगा और उसके हाथ पांव लरजने लगे। सुल्तान ने उसी वक्त नौजवान को भी अंदर बुलाया और सबके सामने हुलिया जाहिर किया। सुल्तान ने लोगों से कहा, जिस शख्स को लड़की और लड़के में फर्क ना मालूम हो, वो किसी के किरदार का फैसला नफ्स से कैसे कर सकता है। ये इस पोप का असल चेहरा है, इसने तुम सबको धोखा दिया है। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। बहुत से लोग रोने लगे, बहुत से लोग शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने किस तरह एक झूठे इंसान पर यकीन करके अपनी बेटियों और बहनों की जिंदगियां बर्बाद की। सुल्तान ने पोप के झूठ, उसकी लालच और उसके गुनाहों को सबके सामने बयान किया। पोप के तमाम राज खुल गए, उसके झूठ का पर्दा चाक हो गया। अब वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी ना कर सका, क्योंकि सच सबके सामने आ चुका था। लोगों ने उससे नफरत करना शुरू कर दी। वो शख्स जो कल तक इज्जत का मरकज था, आज जिल्लत का निशान बन चुका था। सुल्तान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने इस जुल्म को बेनकाब करने का मौका दिया और लोगों को सच दिखाया। अब पूरा गांव जान चुका था कि वो एक धोखेबाज के पीछे चल रहे थे। जब पोप का असल चेहरा सबके सामने आ गया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उसके जुर्म की सजा दी। उस जालिम शख्स को कत्ल कर दिया गया ताकि दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। इसके बाद सुल्तान ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें समझाया कि उन्होंने किस तरह एक इंसान को खुदा का दर्जा दे दिया था और इसकी एक बात पर अपनी बेटी की इज्जत और जिंदगी कुर्बान कर दी थी। लोगों ने अपनी गलतियों पर सख्त नदामत जाहिर की। वो रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। सुल्तान की अक्ल, इंसाफ और रहमदिली से मुतासिर होकर पूरे गांव के ईसाइयों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई, सबने खुद फैसला किया कि वो सच के रास्ते पर चलेंगे।
वो कलीसिया जिसमें पोप रहता था उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जहां अब अल्लाह की इबादत होने लगी। सुल्तान ने सिर्फ पोप को सजा देने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन तमाम लड़कियों को भी बुलाया जिन्हें उस पोप की वजह से गांव से निकाल दिया गया था। सुल्तान ने उनके दुख सुने, उनकी इज्जत बहाल की और उनकी शादियां कराने का हुक्म दिया। सुल्तान ने उन लड़कियों के लिए बेहतरीन रिश्ते तलाश करवाए ताकि वो इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार सके। इस तरह वो लड़कियां जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं दोबारा उम्मीद और खुशी की तरफ लौट आई। उनके वालिदैन के आंसू खुशी में बदल गए और पूरे गांव में सुकून और इंसाफ की फिजा कायम हो गई। लोग सुल्तान की अक्लमंदी और रहमदिली की तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि किस तरह एक हुक्मरान ने ताकत की बजाय अकल और इंसाफ से जुल्म का खात्मा किया। इस वाक़ये के बाद लोग ये समझ गए कि किसी इंसान को खुदा का दर्जा देना इतनी बड़ी गलती है, और ये भी कि किसी की इज्जत और किरदार का फैसला किसी एक शख्स के हाथ में नहीं होना चाहिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से न सिर्फ एक बड़े जुल्म का खात्मा हुआ, बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां बच गईं और एक पूरा गांव सच के रास्ते पर आ गया। इस तरह यह वाकया अपने अख्ताम को पहुंचा और सुल्तान की यह हिकमत हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।